चलो आवाज़ आ रही है सबको मेरी? चलो आवाज़ आ रही है सबको मेरी? Can you guys inform everyone कि क्लास शुरू हो चुकी है? Or maybe just copy paste the link of this video. नहीं अभी शुरू हुई है प्रिया. You didn't miss anything at all. Hello Shiza. अच्छा so शुरू करें? Shall we? ठीक है, so I'm just going through the questions. ठीक है. So ideally what I'd want to finish today is question number 10. सही है सबसे पहले. And then question number 10 के बाद I don't think इसको करना इतना ज़रूरी है. Question number 11, 10, 11 and then
डेफिनेटली शुरू करते हैं जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. And I said I'm going to do question number 10, right? So let's do question number 10. Let me take a screenshot, just a minute. ये कौन है भाई जो पूछ रहे TLR पे क्लास हो रही है? अच्छा खैर, let's begin the show. So let's read the question, ठीक है? And as I'm reading the question, I want you guys to tell me what do you think are the keywords, ठीक है? I'm not gonna. Which book is this, Ramin? This is book. This is book 4. नहीं ये past papers नहीं है. This is book 4. And I think I shared the PDF of this with you guys. खैर, in case I didn't, let me know. मैं share कर दूँगा. There's nothing to worry about. Okay, so I'm going to start. So as I said, I'm going to read the question and then simultaneously I want you guys to tell me what the keywords are. What do you think are the keywords? Okay? So basically OPQR is a parallelogram, right? So if OPQR is a parallelogram, the point A on PR is such that AR is equals to 3/4 of PR, AR is equals to 3/4 of PR, fine. अच्छा एक काम करते हैं, let's just stop here. Stop here in the sense that let's try and put this information into some perspective. So AR which is equal to 3/4 of PR. So that means कि ये वाली जो लाइन है हमारी जो A से लेके R तक जा रही है ये basically PR की कितनी है 3/4 of PR. So अगर ये उसकी 3/4 है so the remaining obviously is going to be 1/4. ठीक है. So PA is going to be 1/4 of PR. ठीक है. Now I don't even know whether this is asked in the question or not. ठीक है. But I've just written it just in case. Now the point B on PQ is such that PB is equals to 1/3 of PQ. Alright, let's put this information into perspective as well. कि PB जो है is basically 1/3 of PQ. Alright, so PB is 1/3 of the total. ठीक है. So obviously common sense says कि जो remaining होगा, let's use the color red for that. So the remaining is going to be 2/3, right? So this is going to be equal to 2/3 of PQ. अच्छा, do I know what PQ is? Of course I can figure it out very conveniently. वो कैसे? PQ जो होगा वो basically 15B के बराबर होगा. Why? Because it's a parallelogram, keyword. And RQ जो होगा, RQ is going to be equal to 15A. Why? Because of the fact that it's a parallelogram. So अब let's read the question further and see कि हम और क्या क्या कर सकते हैं. Given that OP is equals to 15A, well yeah, we figured that. And OR is equals to 15B, we figured that too. Express the following vectors in terms of A and B. Okay, PR. Now PR के लिए what we can do is we can go from P to O, ठीक है? We can go from P to O and then we can go from O to R. So if I go from P to O, so that's going to make it what? That's going to make it ये मैं part 1 solve कर रहा हूँ, ठीक है? So if I'm going from P to O, that's since I'm going to be going against the arrow when I'm going from P to O, so that's going to be minus 15A. And then O to R, since I'm going with the arrow, O to R with the arrow, with the flow of the arrow, so that's going to be positive, so that's going to be equal to 15B. Since this doesn't look very nice, so I'm going to write it as 15B minus 15A. ठीक है? So ये आ गया मेरा part 1. And then if you wish to take 15 common, that's entirely up to you. Okay, now part 2. Now part 2 says PA. Now PA हमने अभी निकाला था. PA क्या निकाला था हमने निकाला था कि भाई PA होगा 1/4 ऑफ PR. तो ये हम जब तक नहीं फिगर आउट कर सकते थे जब तक हमारे पास PR नहीं था. अब क्योंकि हमारे पास PR आ चुका है so हम वेरी कन्वीनियंटली PA भी फिगर आउट कर सकते हैं. So PA is equal to 1/4 of PR. ठीक है. So let's just leave PA as it is. 1/4 of PR, so that means 15B minus 15A. ठीक है. 15 बाहर निकालो. It'll just make it look nicer और कोई लॉजिक नहीं है. So that's going to be 15/4B minus A. ठीक है. Any trouble so far? If yes, let me know. और जब तक आपका जवाब आएगा मैं एक सवाल और सॉल्व कर लूँगा. अच्छा, अब हमें चाहिए OA. Now OA हम कैसे निकालेंगे? OA के लिए हमें पहले जाना पड़ेगा O से P. ठीक है. क्या कहा मैंने? हमें पहले जाना पड़ेगा O से P and then हम जाएंगे P से A. ठीक है. So O से P and then P से A. Let's use a different color. What color have I not used so far? Let's use purple. ठीक है. So here's what I'm doing. I'm figuring out OA. ठीक है.
सो ओ ए के लिए व्हाट हैव आई डिसाइडेड, वी हैव डिसाइडेड कि हम जाएंगे ओ से पी, सो दैट्स गोना बी 15a, एंड देन पी से ए, सो पी से ए अभी सवाल ने हमसे निकलवाया, सो दैट्स गोना बी 15/4 टाइम्स बी माइनस ए, टाइम्स बी माइनस ए। ठीक है, इसको ज़रा खोल के लिख लेते हैं, बल्कि पहले तो एक काम ये करते हैं, ज़रा जगह बना लेते हैं। इट्स गेटिंग स्लाइटली मेसी। Oops. So that's just going to change everything. Let's just leave it as it is. So this is going to be 15a plus 15/4b minus 15/4a. Keep your calculators ready, please. So 15 minus 15/4a जब हम करेंगे, so that's going to make it what? That's going to make it 15 4s are 60. 60 minus 15 is 45. So 45/4a plus 15/4b. अच्छा, अगर आपके पास ये बुक है और अगर आप गलती से इसका आंसर चेक कर लें तो, और अगर आप इसका आंसर ऐसा लिखा हुआ देख लें तो मुझे बताएं, आप लोग घबरा तो नहीं जाएंगे? एंड कैन यू टेल मी व्हाट जस्ट हैपेंड फ्रॉम हियर टू हियर? लेट्स सी इफ यू गाइस कैन फिगर इट आउट योरसेल्फ। एनीवे, सो दैट वाज ओ ए। नाउ लेट्स फिगर आउट ओ बी। ठीक है, तो ओ बी कैसे निकालेंगे? ओ बी के लिए लेट्स स्विच टू अ डिफरेंट कलर। आई एम सॉरी दिस इज बिकमिंग अ मेस, बट क्या करें, दिस इज टू लाइट, लेट्स स्विच टू ब्लैक। या सो ओ बी के लिए पहले तो हमें जाना पड़ेगा ओ से पी विच इज़ 15a, एंड देन हमें जाना पड़ेगा पी से बी। ठीक है, किसकी बात करूँ मैं? पी से बी, जो कि ये मैंने पर्पल से लिखा हुआ है इज़ 1/3 ऑफ पी क्यू। सो दैट मीन्स दिस इज गोना बी इक्वल टू 1/3 ऑफ पी क्यू। और पी क्यू किसके बराबर है? पी क्यू हमने ये लिखा हुआ, पी क्यू इज इक्वल टू 15b, सो दैट्स गोना बी इक्वल टू 15b। ऑलराइट, सो दिस इज गोना बिकम 15a प्लस 15 का 3 से डिवाइड कर लें, सो दैट्स गोना मेक इट 5p। ठीक है, सो ये हमारे चारों पार्ट्स हो गए। बताएं ज़रा, हाउ कम यू गाइस आरंट कमेंटिंग एनीथिंग? क्या सब समझ आ रहा है आपको? Oh, अच्छा, you guys are commenting और refresh नहीं हो रहा। ठीक है, anyway, so I guess all is well so far. चलें आगे चलें, कोई मसला? वीडियो हैंग हो रही है? आई डोंट नो क्यों हैंग हो रही है, मेरा तो सब सेट है। Let me see what internet am I connected to. Yep, all is well. Probably something wrong at your end, प्रिया। कहीं आपने PTCL इंटरनेट तो नहीं लगवाया हुआ बेटा? अच्छा अज़विया, ये आपका नो जो आपने इतना लंबा लिखा है, ये क्यों लिखा है? ज़रा प्लीज़ मुझे बताओ, इसके पीछे क्या वजह है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट वी जस्ट डिड। ठीक है, इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, सो आई थिंक आई एम गोना स्किप क्वेश्चन नंबर 11 एंड आई एम गोना मूव स्ट्रेट टू दिस क्वेश्चन। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा मुझे ये बताएं, मैंने जो कल आप लोगों को वीडियो देखने को बोली थी मेरे चैनल पे, मैथलीट MATHLETE, तो वो आप लोगों ने देखी? किसके पास? अ, अरे यार, एक काम दिया था मैंने आप लोगों को, वो भी आप लोगों ने नहीं किया। क्या पूरा दिन फारिग हैं, फिर भी एक काम नहीं होता आप लोगों से यार। अब क्या करें, मैं आपको बैठ के वीडियो दिखाऊं? खैर, अब नहीं देखी तो नहीं देखी, क्या कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा यहाँ पे।
हम फारिग नहीं हैं भाई, पूरा दिन फारिग नहीं है तो और क्या, कौन सा आप लोग स्कूल जा रहे हैं? मैं दिखाऊँ आप लोगों को वीडियो? कैसे दिखाऊँ मैं आप लोगों को वीडियो यार? चलो हम ये सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है? अरे रूट क्या अजीब, आप लोग बर्दाश्त नहीं है आप लोगों को, मैं कुछ सुनने की बर्दाश्त नहीं है, बस बड़ी बड़ी बातें करा लो। खैर, I'm gonna do question number 14. Pay attention. Okay, so question number 14 says PQRS is a parallelogram. Now, if I were you, I'd underline the term parallelogram, ठीक है? And right away, I'd figure out कि ये A होगा, oh sorry, A नहीं होगा, ये B होगा. Sir, please do probability and sets. अच्छा बेटा. So B and A, ठीक है? अच्छा. Up the question says BQ is equals to 2 times of RB. ठीक है, what am I reading? This is the part that I'm reading. BQ is equals to twice of RB. अच्छा, let's see. So basically BQ जो है वो RB का double है, ठीक है, very good. where's AR? AR is here, is 1/3 of the total SR, ठीक है. So PS is equals to A and PQ is equals to B, ठीक है. अच्छा, so what I'm gonna do is I'm just gonna figure out whatever I can, ठीक है, before even reading what the question is asking for, ठीक है. Now this is exactly what I'm doing right now. What I'm doing is कि मैंने थोड़ी देर के लिए ये सब जो भी लिखा हुआ है ये सब मैं भूल गया, ठीक है. I'm just trying to figure out with the given information all that I can figure out, ठीक है. So I'm just gonna hide all this for you guys, ठीक है, and then I'm only gonna figure out what I can. So here's the thing. सबसे पहले the question says BQ is equals to twice of RB. Now let's see what I can do with this piece of information. BQ is equals to twice of RB. अच्छा, इसमें कहीं पे भी हमें टोटल जो है वो नहीं पता, ठीक है. एक तरफ बात कर रहे हैं BQ की और एक तरफ बात कर रहे हैं RB की, ठीक है. BQ और RB ये कहीं से टोटल नहीं है. So what I'm gonna do is मैं BQ को ऊपर रहने देता हूँ, RB को नीचे ले आता हूँ, and I'm gonna make this equal to 2/1, ठीक है. सब ये बहुत ध्यान से सुने, ठीक है. इसका मतलब क्या है कि बी क्यू और आर बी जो हैं वो किस रेशो में स्प्लिट हुए हैं? वो स्प्लिट हुए हैं इन द रेशो 1:2. सो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि भाई आपका बी आर जो होगा, मीनिंग दैट इफ़ यू गोइंग फ्रॉम बी टू आर, ठीक है, एंड इफ़ यू गोइंग फ्रॉम क्यू टू बी, तो इफ़ यू गोइंग फ्रॉम क्यू टू बी सो दैट्स गोना बी इक्वल टू 2/3 ऑफ ए, एंड इफ़ यू गोइंग फ्रॉम बी टू आर सो दैट्स गोना बी इक्वल टू 1/3 ऑफ ए. अच्छा, मैं यहाँ से ए मिटा देता हूँ, ठीक है. सो दिस इज़ 1/3 ऑफ ए एंड दिस इज़ 2/3 ऑफ ए. सर व्हाट इज़ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स? बेटा ये जो आप बात करें ना क्रॉस प्रोडक्ट, ये आप बात करें एड मैथ्स की, ठीक है, और यहाँ बात करें एएस लेवल मैथ की. अभी व्हाट आई एम टीचिंग इज ओ लेवल मैथ, ठीक है. ये क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट जो हम करते हैं ना, ये हम उसमें करते हैं, एएस में करते हैं, ठीक है. ओके, सो एज आई वाज सेइंग, हाँ. And let's see what other information I have. I have this, that AR is equals to 1/3 of SR. Sorry? Sir, can you explain again? Yeah, sure I can. Dekho, here's what's happened. Let's erase this. ठीक है. अच्छा अनुषा, what I've done here is कि ये मैंने as it is copy किया है, ठीक है. So what I'm gonna do is I'm gonna BQ को मैंने वही रहने दिया और RB को मैं उठा के नीचे ले आया. So BQ over RB is equals to 2:1, ठीक है. That's all I've done. That means कि BQ और RB का जो रेशियो है वो 2:1 है, ठीक है. अब उसकी मदद से मुझे क्या पता चल गया? Sir, I have a further math paper tomorrow. I'll chill here. Okay, very good. Anyway, so that means कि इनका जो रेशियो है वो बेसिकली 1:2 का रेशियो है. दैट मीन्स ये टोटली कितने पार्ट्स में स्प्लिट हुए हैं? टोटल 3 पार्ट्स में स्प्लिट हुए हैं. सो बी क्यू इज 2/3 एंड आर बी इज 1/3. सो दैट मीन्स इफ यू गोइंग फ्रॉम बी टू आर इट्स गोना बी 1/3 ऑफ ए, एंड इफ यू गोइंग फ्रॉम क्यू टू बी दैट्स गोना बी इक्वल टू 2/3 ऑफ ए. सही. So that was that. Anusha, I hope अब clear हो गया हो. अच्छा, अब I'm gonna switch to another color, ठीक है. Let's switch to the color blue. And let's talk about this line. अच्छा, इस लाइन का जो मुझे पहले से दिया गया था वो ये दिया गया था कि AR is equals to 1/3 of SR. Now the good thing about this is कि मेरे पास SR which is the total ये already है, ठीक है. कैसे है? Because it's a parallelogram, so I can very convenient to figure it out. SR, in fact I already did, is equals to B. So that means AR जो होगा, AR is going to be equal to 1/3 of B. So if AR is equal to
Are we back? Yeah, that's a good question. What happened? नहीं बेटा, मैंने तो PTCL नहीं लगवाया हुआ, मेरा तो स्ट्रॉन्ग फाइबर है. I'm surprised this is happening. अच्छा, कोई बात नहीं, चलो मुझे बताओ, what did you guys miss so that I can start from there again. What did you guys miss? Did you guys miss part 1, part 2? Just quickly tell me ताकि मैं वहाँ से शुरू करूँ. Oh, सब कुछ? Are you serious? You mean the explanation as well or just the parts? ठीक है. I don't mind doing that. Let's do that again. I thought you guys meant कि मैं पूरा सवाल दोबारा समझाऊँ. It ended at AR is equals to 1/3 of B. ठीक है, कोई बात नहीं. Anyway, so all the parts are quite easy. Well, it's good that you find them easy, but anyway. So I'm going to start from A part 1. ठीक है, just pay attention now. SA. So SA का मतलब that I'm going to start at S and I'm going to end at A. So that's just this part of the line. ठीक है, so that's equal to what? That's equal to 2/3 of B. So that's taken care of. Now let's do part 2. Now part 2 mein the question's asking for QB, so that means I'm going to start at Q and end at B. So that's just this part of the line. So that's equal to what? That's equal to 2/3 of A. ठीक है, so that's taken care of. Now let's do part 3. Now part 3 says PB. ठीक है, so that means P से जाओ Q, Q से जाओ B पे. तो P से Q कितना है? That's equal to B. और Q से B कितना है? That's equal to 2/3 of A. So B plus 2/3 of A. ठीक है, तो ये तो हमारे तीनों पार्ट्स हो गए. There's absolutely nothing complicated in them. ठीक है, part 4. But only ये आपको आसान सिर्फ जब ही लगेंगे जब आप शुरू में सारी ख्वारी कर लें. ठीक है, अगर आप क्वेश्चन के साथ साथ ये सारी ख्वारी करेंगे तो फिर you guys are gonna confuse yourself. ठीक है, तो पहले से आपने ये जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है इससे आप जो फिगर आउट कर सकते हैं ना, ये जो मैंने रेड और ब्लू से किया हुआ है ये आपने पहले से ही करके रखना है. ठीक है. So part 4 says QS. That means you start at Q and you end at S. So the route that I would take is minus B plus A. So QS is going to be minus B plus A, but then as always this doesn't look very nice, so I'm going to change it to A minus B. ठीक है, so it's the same, सिर्फ order का फर्क है. And then BA. So BA के लिए what I'm going to do is I'm going to go from B to R and then R to A. ठीक है, since that's the only option that I have. So BA is going to be equal to 1/3 of A, and now since I'm going against the arrow, so that's going to be 1/3 of B. And then a nicer way of writing this would be to take 1/3 common and then write it as A minus B. BR plus RA. Yes, Briha, you're absolutely right. Alright, so that's taken care of. अभी तक कोई मसला? I hope not. खैर, जब तक आप लोग जवाब देना है, I'm just gonna solve. Yes, Briha, good job. I'm just gonna solve B part 1, which says BA over QS. Okay. So BA over QS का मतलब basically part 5 का आंसर divided by part 4 का आंसर. So part 5 का आंसर है 1/3 of A minus B, and QS का आंसर है A minus B. So what's gonna happen? A minus B and A minus B will get cancelled out, and you're simply left with 1/3. अभी तक कोई मसला? Explain part 3. ठीक है, fine, I'll explain part 3 again. So part 3 में what I'm doing is I'm going from P to B. ठीक है, so P से पहले Q गए, क्या नाम है आपका? फलक. हाँ, P से पहले Q गए बेटा, तो कितना हो गया? B हो गया, and then Q से गए B, so that's 2/3 of A. ठीक है, ये हमने सब पहले से करके रखा हुआ है. So this became B plus 2/3 of A. ठीक है, so there we have it. कहाँ गया? हाँ, B plus 2/3 of A. Okay, so all is well, I guess. Let me just scroll up. I think सब कुछ set है. Okay, now let's do part 3. ABR and SQR. So what do you think ABR and SQR are? In the sense, like, what do you think they are? Okay, quickly let me know. मैं इतना ज़रा इसको अलग से बना लूँ. This has gotten quite messy.
Of course there are triangles in Ushe, but like, could you be more specific? Similar triangles, yes. अगर आपने मेरी वो वीडियो देख ली होती तो जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा कि ये क्या हो रहा है उनको शायद समझ आ जाता. खैर, अब आप खुद ही भुगतेंगे, मैं तो नहीं भुगतूंगा. Not bad. Similar triangles. Similar. No, they're not congruent. They're similar. ठीक है. वजह, they have different sizes, but they're the same in shape. Okay. So AR, B, Q, P. अच्छा, what do you do when you have two similar triangles? Basically, when you have two similar triangles, तो हम करते ये हैं कि हम उनकी लेंस को the formula that we use is this. अच्छा, मुझे मैसेज आ रहे हैं कि वीडियो काम नहीं कर रही. Is that the case? This is what you do. ठीक है. Remember, this is only done in the case of similar shapes. Collinear sides, Priha, seriously? Collinear आपको कौन से, आपको ABR और SQR collinear लग रहे हैं आपको? I'm talking about triangles. I'm not talking about that concept. ठीक है. I think I know what you're saying. ठीक है. But that's not what I'm talking about. So basically, what I'm gonna do is pay attention. एक लेंथ ये ले ली, ठीक है. ये अगर वन पार्ट है तो एस क्यू जो टोटल है वो कितना है, इज बेसिकली इक्वल टू 3 पार्ट्स. तो अगर मैं इस चीज़ को तमीज़ से बना के देखूँ, ठीक है, सो व्हाट आई एम गोना एंड अप विद समथिंग लाइक दिस. ठीक है. अच्छा, एक बात और, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ए बी और एस क्यू, ठीक है, मैंने सिर्फ ये चीज़ सेपरेटली बनाई है, ठीक है, एंड दिस इज आर. अगर मैं आपसे कहूँ कि ए बी और एस क्यू पैरेलल हैं, तो क्या आप मेरी बात का यकीन कर लेंगे? और क्यों यकीन करेंगे, पहले तो मुझे ये बताएं. Well, the answer is yes, they are parallel. ठीक है. उसकी वजह क्या है? AB, as we saw earlier, was basically equal to 1/3 of A minus B, and SQ we saw earlier is equal to A minus B. ठीक है. So they both are in the same direction. फर्क सिर्फ और सिर्फ किसका है? फर्क सिर्फ और सिर्फ इनकी लेंथ का है. ठीक है. एक अगर 1 है तो दूसरी उसकी 1/3 है. ठीक है. So basically हमारे पास इनकी लेंस का रेशियो है. हमारे पास क्या है? इनकी लेंस का रेशियो. हमारे पास इनकी लेंस का जो रेशियो है वो है बेसिकली 1:3. So what I'm gonna do is I'm gonna square this. The only reason why I'm doing this is because they are similar. Now please remember, ये वाला जो concept है ये हम सिर्फ और सिर्फ similar objects के लिए यूज करते हैं, not necessarily similar triangles. ठीक है, but any two similar objects. ठीक है, for similar objects only. ठीक है. So if I square 1/3, so what do I get? I get 1/9. अच्छा, अब इस 1/9 की ज़रा थ्योरी भी आप लोग समझ लें. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस. ठीक है. ये 1 और 9 इनके एक्चुअल एरियाज नहीं है. ठीक है. 1 और 9 क्या है? 1 और 9 इनके एरियाज का सिंपली रेशियो है. इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि एक का एरिया 1 है तो और दूसरे का एरिया 9 है. इसका मतलब ये है कि अगर इस छोटे वाले का एरिया 1 है, ठीक है, तो ये जो आपका पूरा बड़ा ट्राइंगल आप देख रहे हैं आर एस क्यू या आर क्यू एस, इस पूरे का एरिया क्या है? इस पूरे का एरिया 9 है. दैट मीन्स के बड़े वाले का जो एरिया है वो छोटे वाले का 9 टाइम्स है. दैट्स ऑल दैट दिस मीन्स. ठीक है. तो यहाँ तक किसी को कोई मसला? we've done part 1, we've done part 2, now we're going to do part 3. ठीक है. यहाँ तक किसी को कोई मसला? Okay, good. Acha, now let's read part 3. Now part 3 says area of ABR is to area of PQRS. Now what is ABR? ABR तो एक triangle है, and what is PQR? ठीक है. In fact question में दिया हुआ भी है. PQR क्या है? PQR एक parallelogram है. ठीक है. Now remember, there's one thing that I always say is
that you can only compare apples with apples and oranges with oranges, ठीक है. उसका explain once again, ठीक है. let me just finish this, फिर मैं ये पूरी चीज़ें दोबारा समझाता हूँ, ठीक है. just hang on, ये भी सुन लो, फिर वो भी दोबारा समझाता हूँ. so basically ये जो हम similar लगाते हैं ना, कि हम किस में लगाते हैं, ये हम same ये जो हम a1 upon a2 equals to l1 upon l2 the whole thing square लगाते हैं, this we only do for similar objects, ठीक है. if the objects are not similar then we don't use that formula, ठीक है. उसके लिए अब हम क्या यूज़ करेंगे, अब हम simple logic यूज़ करेंगे. अच्छा, अभी हमने फिगर आउट किया, हमने ये फिगर आउट किया कि भाई अगर आपके इस छोटे ट्रायंगल का ए आर बी या ए बी आर व्हाटएवर यू विश टू कॉल इट, अगर इसका एरिया इज़ 1, ठीक है, तो आपका जो ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, लेट मी स्विच टू द कलर ब्लैक, मैं इसकी बात कर रहा हूँ. इस बड़े ट्रायंगल का जो एरिया हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इस बड़े ट्रायंगल का एरिया 9 हो जाएगा, ठीक है. किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, सही है. अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि अगर इस ट्रायंगल का एरिया 9 है, तो ये जो आपका दूसरा ट्रायंगल है, इसका भी एरिया क्या होगा, इसका भी एरिया 9 के बराबर होगा, ठीक है. सो व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स कि अगर पूरे आपको पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए तो वो हम कैसे निकालेंगे, वी सिंपली गोना ऐड 9 एंड 9 टुगेदर, तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है. आई विल एक्सप्लेन दिस अगेन, ठीक है. लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस सेपरेटली. नाउ व्हाट्स गोइंग ऑन इज कि ये 9 है, ये 9 है, ठीक है. और इसी 9 में से एक हिस्सा जो है वो इस छोटे ट्रायंगल के पास है, ठीक है. दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन. सो व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू फिगर आउट द एरिया ऑफ ए बी आर इज टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस. सो ए बी आर का एरिया अगर 1 है तो पूरे पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस उसका एरिया क्या हो जाएगा, उसका एरिया हो जाएगा 18, ठीक है. सो दैट मीन्स द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज 1:18. सो दिस वी फिगर्ड बी पार्ट 3. यहाँ तक अब किसी को कोई मसला? अच्छा खैर, जब तक आप लोग इस बात का जवाब दे रहे हैं, आई एम गोना एक्सप्लेन द अदर बिट अगेन, ठीक है. इन फैक्ट लेट मी जस्ट क्लियर दिस मेस अप, लेट्स जस्ट ड्रॉ इट अगेन. आई होप कि कोई कॉपी ना कर रहा हो बस. Okay, now pay attention. Basically, situation कुछ ऐसी थी. सही ना, ये था 1, सही, और ये जो आपकी पूरी लाइन थी ए बी वॉज 1, सही, एंड एस क्यू वॉज 3, ठीक है. सो इन द फर्स्ट पार्ट where we had to figure out the area of triangle ABR is to SQR, all we did was we took 1 and 3 जो कि इनकी corresponding lengths थी और हमने उसको स्क्वायर कर दिया, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 1:9, ठीक है. अच्छा, अब इस चीज़ को समझने ज़रा, जो 1:9 निकाला है हमने, इस और ये हमने किया क्यों है, हमने इसलिए किया बिकॉज दे वर सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है. अब इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड दिस. इसका मतलब कि ये जो मैंने ब्लू से शेड किया है, इसका एरिया क्या है, इसका एरिया 1 है. अच्छा, और अब जो मैं रेड से शेड कर रहा हूँ, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया क्या बन रहा है, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया बन रहा है 9. अच्छा, 1 and 3 कहाँ से आया, 1 and 3 यहाँ से आया ना भाई, ये देखो ना, BS to QS, इसकी बात कर रहा हूँ. डोंट यू गाइस रिमेंबर दिस, 1:3 नहीं आया था हमारे पास जब हमने ये किया था, ये BA/QS किया था, तो हमारे पास क्या आया था, हमारे पास 1:3 आया था, ठीक है. ये सब पूरा जो बी पार्ट है ना, सारा कनेक्टेड है, तो अगर आपने कोई एक पार्ट भी मिस कर दिया ना, तो आपको आगे का कोई पार्ट समझ नहीं आएगा, ठीक है. अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर द क्वेश्चन इज सेइंग, अब आपने क्या निकालना है, अब आपने पूरे पैरेललोग्राम का एरिया बताना है क्या है, ठीक है. अच्छा, आई मिस्ड अ पॉइंट हियर एंड दैट पॉइंट इज पॉइंट पी, ठीक है. अब पैरेललोग्राम का में जो हाफ आपका ट्रायंगल बन रहा है, उसका एरिया अगर 9 है, तो जो रिमेनिंग हाफ है ऑब्वियसली उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया भी 9 होगा. सो दैट मीन्स टोटल पैरेललोग्राम, आपका टोटल पैरेललोग्राम, उसका एरिया क्या हो जाएगा, उसका एरिया हो जाएगा आपका 18. क्यों, 9 आधे का और 9 ऑब्वियसली रिमेनिंग हाफ, ठीक है. एंड उसमें जो आपका छोटा ट्रायंगल बन रहा है, उसका एरिया क्या है, उसका एरिया इज 1 पार्ट, ठीक है. सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABR is to parallelogram PQRS, that is equal to 1:18. अब मुझे बताओ, समझ आया आपको?
Okay, what about the rest? ए बी आर का एरिया 1 कैसे है? 1 इसका ऐसे है कि 1 को हमने स्क्वायर किया. देखो, here's the situation. This is A, this is B, this is R and this is SQ. ठीक है. अच्छा, अब मैं वो भी बता देता हूँ जो आप लोग पूछ रहे थे ना, 1 और 3 कहाँ से है. याद करो कि AB was equal to 1/3 of A minus B and SQ was equal to A minus B. ठीक है, अभी हमने पहले ये निकाला है. सही. So, and then there was a question in which you had to figure out BA over QS. ठीक है, you had to figure out BA divided by QS. So BA was equal to 1/3 of A minus B, ठीक है, and QS was equal to A minus B. So what happened next? A minus B and A minus B got cancelled out and we had 1/3. Now इस 1/3 की बहुत significance है, in the sense कि ये आपको BA और QS जो लेंस हैं इनका रेशो बता रहे हैं आपको. ठीक है, BA और QS जो आपके पास लेंस हैं इनका जो रेशो है वो 1:3 है. And we already know that these are similar triangles. So अच्छा, we don't need to write A minus B again since जब हम similar triangles में areas का ratio निकाल रहे होते हैं, so what we are only interested in is the ratio of their lengths, and which we know is already 1:3. So if you want to figure out the ratio of the area, so I'm going to call this A1 and the entire triangle A2. So A1 upon A2 is going to be equal to L1 over L2, the whole thing square. So let me just erase this mess that I made here. ठीक. So जब हम A1 अपॉन A2 निकाल रहे हैं तो A1 अपॉन A2 निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने 1/3 को स्क्वायर कर दिया. तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 1/9. ना 1/9 का क्या मतलब है, 1/9 का मतलब ये है कि आपका अगर ट्रायंगल ए बी आर, ठीक है, आई रिपीट कि आपका अगर ट्रायंगल ए बी आर का एरिया 1 है, ठीक है, तो आपका ट्रायंगल व्हाट्स द अदर ट्रायंगल एस क्यू आर, तो आपका ट्रायंगल एस क्यू आर का जो एरिया है वो उसका 9 टाइम्स है. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे हुआ ये था कि आपके पास सिर्फ ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स ही नहीं थे बल्कि आपके पास एक पूरा पैरेललोग्राम भी था. ठीक है, दोबारा समझ लें इसको, इट्स ट्रिकी टू गेट द हैंग ऑफ. सो बेसिकली द आइडिया इज़ कि ये 1 है, मतलब इसका एरिया 1 है, और आपका ये जो बड़ा ट्रायंगल है इसका एरिया क्या है, इसका एरिया 9 है. तो चलो एक काम करते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे सिर्फ इस ट्रिपीजियम का एरिया बताओ, ठीक है, सिर्फ इस ट्रिपीजियम का, तो आपको पता है कि पूरे ट्रायंगल का 9 है और उसमें से एक पार्ट जो है उस छोटे ट्रायंगल के पास है, तो इस ट्रेपीजियम का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा. एंड अब यू कैन सी दैट द इंटायर ट्रायंगल हैज़ एरिया ऑफ 9. ठीक है. सो द अदर ट्रायंगल विच इज़ ऑब्वियसली कॉन्ग्रुएंट टू द प्रीवियस वन, इसका भी क्या होगा, इसका भी 9 होगा. सो दैट मीन्स ए बी आर का एरिया है 1 ओवर पूरा पैरेललोग्राम जिसका एरिया क्या है 18. सो दैट्स द आंसर टू द लास्ट पार्ट. आर वी क्लियर? प्लीज से यस. ठीक है. I see a lot of yeses, so I guess all is well. Acha, now there's another question that I want to solve with you guys, and that involves, thank you. So the other question that I want to solve with you guys is make important concept here. ठीक है. Although I'm disappointed कि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी. Really wanted you guys to watch it because it would have saved you and me a lot of time. But चलो खैर, pay attention. So here is an important concept that you must know if you wish to solve questions related to area. ठीक है. अब क्या फ़ायदा सॉरी करने का? खैर, just pay attention, doesn't matter. So basically here we have A, B, C, D. ठीक है. And I'm telling you that ABC is a straight line.
ABC is a straight line, ठीक है। एंड उसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि चलो the length BC is let's say 4 centimeter, right, and the length AB is let's say 6 centimeter, ठीक है। That's just given to you in the question. So let me just write it down. AB is equals to 6 centimeter and BC is equals to 4 centimeter. Now with just this piece of information, ठीक है, with just this piece of information, मैं आपसे कहता हूँ find out part 1 area of triangle ABD over area of triangle BCD, ठीक है। Now can you do that? पहले तो मुझे ये बताएं what concept are you going to use here? Similar triangles, congruent triangles, or nothing at all? I mean nothing related to similar or congruent. Now part 2 में मैं आपसे कह रहा हूँ that figure out area of triangle ACD over area of triangle ABD, ठीक है। अब मुझे बताएं कि have I given you guys sufficient information to figure this out? Three is to two. Huda, please enlighten us. How did you manage to do that? Tell me, what concept did you use? No, they're not similar triangles, Anusha. They're not similar triangles. They do not have the same shape. Just because they're triangles, they're not similar. अच्छा, next part में 5:3. कैसे आता है आपको ये सब? सही, Huda, you're absolutely correct as far as part 2 is concerned. Alright, so Anusha, first things first, they are not similar triangles, ठीक है। Similar triangles अगर होते हैं तो इनके सारे angles same होते हैं, ठीक है, जो कि ऐसा नहीं है। What they are is they are non-similar, non-congruent triangles, ठीक है। Who, however, they share, इनकी एक dimension है जो common है, ठीक है। अच्छा, फर्ज करें हम निकालने चलते हैं ABD का एरिया। क्या करते हैं हम ABD का एरिया निकालने चलते हैं, ठीक है। सो एक ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? यू नीड टू नो व्हाट द बेस इज एंड यू नीड टू नो व्हाट द हाइट इज। अब ये जो लेंथ मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, ठीक है, ये क्या है? ये बेसिकली दोनों ट्राइंगल्स की हाइट है, इनफैक्ट तीनों ट्राइंगल्स की हाइट है। कौन तीनों ट्राइंगल्स की? BDC की भी यही हाइट है, ठीक है, DAC की भी यही हाइट है, एंड कम टू थिंक ऑफ इट ADB की भी यही हाइट है, ठीक है। डज दैट मेक सेंस? आई रिपीट, ACD की भी यही हाइट है, BCD की भी यही हाइट है, एंड DAB की भी यही हाइट है। हाइट क्या होती है? हाइट इज बेसिकली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द बेस टिल द टिप ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, दैट्स व्हाट हाइट इज। अच्छा, अब अगर मैं ABD का एरिया निकालता हूँ तो ABD का एरिया मैं कैसे निकालूंगा? I'll simply do half into base into height, which ना मुझे पता है ना आपको पता है, ठीक है। So let's just call it H. फिर अगर मैं निकालता हूँ BCD का एरिया, तो BCD का एरिया मैं कैसे निकालूंगा? हाफ into the base, which you guys can see is 4 times height, which I'm going to call it H, ठीक है। Now let's see what happens. अब half दोनों fractions में, so it gets cancelled out, ठीक है। I mean दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में है, so it gets cancelled out. H भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है, so what we're left with 6/4. अच्छा, अभी फिलहाल मैं 6/4 को सिंप्लीफाई नहीं करता, ठीक है। I'm just going to leave it as it is. Why? Because I need to prove a point. Now let's come to part 2, ठीक है। Now part 2 में अगर मैं ACD का एरिया निकालता हूँ तो part 2 में ACD का एरिया निकालने के लिए obviously I need to know what the base is. So base you guys can see is equals to 10 centimeter, ठीक है। So half into 10 into H,
And if I want to figure out the area of triangle ABD, so I'm going to do that by half into 6 into h. So half and half get cancelled out, h and h get cancelled out, and we're left with 10:6. So what do you guys notice? मुझे बताएं, ये 6/4 और 10/6 से आपको आपकी अकल में क्या आया, अगर कुछ आया? क्योंकि मैं उनकी क्लास को पढ़ाता हूँ. अच्छा, सो वेल इसलिए नहीं है क्योंकि मैं उनकी क्लास को पढ़ाता हूँ, ठीक है. इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस. खुदा इन फैक्ट डू आई नो यू, ये पता नहीं, इट्स जस्ट समवन रैंडम हु इज जॉइंड. So anyway, so what I'm trying to say here is कि जब दो triangles ना similar हो ना congruent हो, लेकिन वो height share करते हो, in the sense that they tend to have the same height. So the ratio of their areas, ठीक है, I repeat, the ratio of their areas is simply the ratio of their bases. ठीक है, you guys might want to write this down. ठीक है, when two triangles, in fact let's write this down. When two triangles have the same height, the ratio of their areas is the ratio of their bases. ठीक है, याद रहेगा आपको? अच्छा, you can reverse this concept as well, in the sense that when two triangles have the same bases, the ratio of their areas is the ratio of their heights. ठीक है, but ऐसे cases मैंने अभी आज तक देखे नहीं है. It's just something that crossed my mind right now, तो मैंने बता दिया. So are we clear about this concept कि जब दो triangles के bases same हो, height same हो, sorry, तो उनकी ratio of their area is going to be the ratio of their bases. ठीक है, please remember that you guys don't need to square it. Now again I repeat कि you guys do watch a video and then फिर मैंने इससे related example question भी आया इसका, not vectors, something else, वो मैंने solve किया हुआ है. So make sure that you guys watch that. ठीक है, it's very very important. अब मुझे बताओ अगर ये concept clear है ताकि मैं आगे चलूँ. Ratio of areas, ratio of bases, perfect. Rumila, you're absolutely right. अच्छा, now I'm gonna move on. सही है, कीप दिस कॉन्सेप्ट इन माइंड. अच्छा, और एक बात याद रखना कि हमेशा इतने प्यार से तमीज़ से बना हुआ नहीं आएगा. समटाइम्स इट्स गोना बी ट्विस्टेड इन द सेंस लाइक इट्स गोना बी समथिंग लाइक दिस. इन फैक्ट वी आर अबाउट टू कम अक्रॉस अ क्वेश्चन जिसमें ये ऐसे बना हुआ होगा. ठीक है, इट्स गोना बी लाइक दिस. वुप्स, ये कहाँ गई? इट्स गोना बी लाइक दिस. ठीक है, सो अगेन इसको भी अगर आप ज़रा विजुलाइज करें, अगर आप इसको थोड़ा सीधा, अगर आप ये जो आपकी बेस है इसको आप अपने हॉरिजॉन्टल कर लें तो you'll notice कि these two triangles also share the same height. ठीक है, it can be something like this as well. So please don't be confused. Now let's move on and solve. Oops. Yeah, well, the question that I wanted to solve with you guys was question number 15. I think I had already taken a screenshot, but anyway, let's just do it again. Okay. Now question 15 says, in the diagram, T is the point of intersection of the diagonals of the quadrilateral PQRS. PR, where are you? Okay, there you are, is equals to 3 times of PT. Fine, PR is equals to 3 times of PT. That's an important piece of information. Let's just write it down. So PR is equals to 3 times of PT. ठीक है. PS is equals to 5B. Alright, so PS, there you are, you're equal to 5B. And PQ is equals to 4A plus B. So P to Q is equals to 4A plus B. Zainab, are you with us? ये वो सवाल है जो आप मुझसे कल पूछ रही थी. And what else do we have? We have PR, which is equal to 3A plus 12B. So I'm not going to write that down because it's going to get way too messy, so I'll just write it here. So PR is equals to what? 3A plus 12B. Acha, now what I'm going to do is, from here,
I'm quickly going to figure out what PT is equals to as well. Okay, that's going to save me a lot of time. So if I just write this nicely in the sense that if I make PT the subject, so I know that PT is going to be equal to 1/3 of PR. Okay, so PT is going to be equal to 1/3 of PR. So that means all I need to do is I need to let this 1/3 be as it is, and in place of PR, write 3A plus 12B. Okay, so what's 3A over 3? That's going to be equal to A, and what's 12 over 3? That's going to be equal to 4B. So here I have PT. Now again, I don't even know if the question's asking for PT, but I'm just going to figure it out because it's going to help me later on. So now let's see what the question's asking for. The question's asking for RS. Achha ji. Now how do you intend to go from R to S? Tell me. I'm waiting. R to Q and Q to S, R to Q and Q to S, let's see if that's a good idea. That's not a good idea. Why? Because हमारे पास R Q नहीं है. ठीक है. Anyone else? R P plus P S. Yeah, that's a good idea because we have R P and we also have PS. Yep, that's a brilliant idea. So that's going to take us to RS. Okay, I repeat what Ram has just said. Ram's suggesting that we go from R to P and then we go from P to S, and he's absolutely right. So if I want to go from R to P, now bear in mind कि ये जो आपको दिया हुआ है ये आपको PR दिया हुआ है. अगर आप इसको change कर देते हैं, if you change this to RP, so that's going to make it minus 3A minus 12B, so that's RP. ठीक है, I'll just write it here. इसके ऊपर RP plus PS. Now again, ये जो आपको अच्छा PS का मैंने arrow गलत बना दिया. ठीक है, it's supposed to be the other way around, so my apologies. PS as it is plus 5B हो जाएगा. ठीक है, so that's gonna make it minus 3A. Now what's minus 12 plus 5? That's negative 7. ठीक है, so minus 3A minus 7B. यहाँ तक किसी को कोई मसला? I really hope not. Okay, जब तक आप लोग जवाब दे रहे हैं, I'm going to solve part 2. Right, so let's see what part 2 says. So part 2 says RT. Now anyone has any suggestions? How to get from R to T? चलो मैं बताता हूँ आप लोगों को how to get from R to T. ठीक है, because it's slightly tricky. So if you guys recall, हम लोगों ने figure out किया था क्या? हम लोगों ने figure out किया था that PT is equals to 1/3 of PR. ऐसे ही है ना? So if PT is 1/3 of the total, so that means TR. ठीक है, I repeat, what am I talking about? I'm talking about TR. So TR is going to be equal to 2/3 of the total. ठीक है, so TR is going to be equals to 2/3 of PR. ठीक है, क्या कहा मैंने ये कहा कि simply if PT is equals to 1/3 of PR, ठीक है, so TR is going to be equal to 2/3 of PR. ठीक है, सबको I hope ये चीज़ सही से समझ आ गई हो. अगर नहीं समझ आई, so I'll just draw it separately. ठीक है, in fact I'll just draw it separately anyway, just to be sure. So here we had a straight line. ठीक है, this was the point P, this was the point T, and this right here is the point R. ठीक है, now bear in mind कि हमारे पास पूरा PR पहले से मौजूद है. ठीक है, कितना है हमारे पास पूरा PR? That's equal to 3A plus 12P. अब हमने ये डिस्कवर कर चुके हैं कि भाई PT जो है वो 1/3 है और TR जो है वो क्या है, वो 2/3 है. और 1/3 और 2/3 किसका? 1/3 of the total, और 2/3 किसका? अगेन 2/3 of the total. ठीक है, so if you guys want to figure out TR, ठीक है, so TR मैं कैसे निकालूंगा? 2/3 of 3A plus 12B. ठीक है, now let's figure this out. So TR क्या हो जाएगा? TR हो जाएगा आपका सीधा सीधा 2A प्लस 8B. अब आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये कि सवाल ने आपसे TR नहीं मांगा था, सवाल ने आपसे मांगा था RT. ठीक है, तो RT क्या हो जाएगा? minus 2A minus 8B. Now if you wish to take minus 2 common, go ahead, but even if you don't, it's fine. Well, I would like to take minus 2 common because इतने सारे minus sign एक जगह इकट्ठे अच्छे नहीं लगते. So I'll just write it like this, minus 2A plus 4B. Now अब मुझे बताएं किसी को कोई मसला? अज़बी आपको किस चीज़ में मसला है बेटा?
Can we go from RS to ST? We can, but there's a problem. वो ये कि हमारे पास ST नहीं है. अगर ST होता तो क्या ही बात थी. Does that answer your question, beta? Clicker. The same part. चलो मैं दोबारा बता देता हूँ. ठीक है, just pay attention. RS तो हम निकाल चुके हैं. ठीक है, हम गए R से P और P से S. ठीक है, अब T सवाल हमसे मांग रहे हैं RT और हम निकाल रहे हैं TR. ठीक है, वो इसलिए कि इसमें हमें ज़्यादा साइन की चेंजेस नहीं करनी पड़ेंगी. एंड में हम साइन चेंज कर देंगे. अब देखो एस भैया, PT है 1 पार्ट. ठीक है, और TR है 2 पार्ट्स. ठीक है, सो दैट मीन्स अगर फ्रैक्शन के टर्म्स में बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका 2/3 ऑफ द टोटल और ये हो जाएगा आपका 1/3 ऑफ द टोटल. नाउ सिंस आई वांट टू फिगर आउट RT, तो मैं काम ही करता हूँ कि मैं पहले TR निकाल लेता हूँ. ठीक है, तो TR कैसे आएगा? 2/3 ऑफ PR. ठीक है, दैट्स व्हाट आई हैव डन कि मैंने T से R निकाला विच इज इक्वल टू 2/3 ऑफ PR. सही. सो 2/3 ऑफ PR कैसे निकाला? 2/3 लिखा फ्रैक्शन बना के एंड देन PR एज इट इज वहाँ पे फिट कर दिया. ठीक है, अब इसको मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो व्हाट डिड आई एंड अप विद? आई एंडेड अप विद 2A plus 8B. नाउ बेयर इन माइंड दैट दिस इज TR. ठीक है, दिस इज नॉट RT. तो इफ आई वांट टू चेंज द डायरेक्शन, ऑल आई हैव टू डू इज मल्टीप्लाई द वेक्टर विद अ माइनस साइन. ठीक है, सो दैट चेंजेस एवरीथिंग. दैट मेक्स 2A plus 8B minus 2A minus 8B, and then I've just taken minus 2 common just to make it look nice, and that's about it. So I hope अब clear हो गया होगा. ठीक है, अच्छा अब आगे चल रहा हूँ मैं. ठीक है, now the questions asking you to figure out RQ. Now any suggestions how to figure out RQ? है तो जल्दी से बताएं, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ. RP plus PQ, perfect. ठीक है, that's a good idea. अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर मैं अपनी स्क्रीन वर्टिकल करता हूँ तो इससे आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो रही देखने में? अगर हो रही है तो बताएं. I'll change it back to landscape. This just gives me much more room to write. Is this a problem? Quickly let me know. Oh, चलो ठीक है ठीक है ठीक है. Let's go back to normal. चलो खैर है, let's just go back to normal. It's okay, nothing to worry about. नजर नहीं आ रहा. Yeah, third so. Okay, calm down. अच्छा, so what I'm gonna do is इसको ज़रा साइड पे खड़ा कर देते हैं. ठीक है, let's move this. Whoa. Just this part. ठीक है, चलो जगह आ गई. अब the question says that you have to figure out, you have to show, बल्कि नहीं हम तो RQ निकाल रहे थे ना. अच्छा, RQ निकालने के लिए अनुषा ने सजेशन दी थी कि भाई अगर आपको RQ चाहिए है तो पहले आप एक काम ये करें, पहले आप जाएं R से P. ठीक है, उप्स उल्टा लिख दिया. पहले आप जाएं R से P एंड देन यू गो फ्रॉम P to Q. ठीक है, नाउ बेयर इन माइंड हम जा रहे हैं R से P. ठीक है, और ये जो हमें दिया हुआ था वेक्टर वो PR दिया हुआ था. तो RP is going to turn into minus 3A minus 12B and then PQ as it is chop though, which is 4A plus B. ठीक है, so minus 3A plus 4A is going to make it positive A and then minus 12B plus B is going to make it 11B. ठीक है, so that's it, that's all I've done. There's nothing too complicated in this part. A minus 11B, yes Anusha, good job. Okay. So that's RQ. Now let's do part B. Where is Briha? Briha का अभी तक कुछ comment नहीं आया. Now in part B you have to show that QT is equals to 3 times of B minus A. ठीक है, so what do you guys suggest? How do I go from Q to T? चलिए से बताओ.
QP plus PT, perfect. ठीक है. Now what's QP? Let me just make it 11C joke. So I'm gonna go from Q to P, ठीक है. So if I go from Q to P, so that's gonna be, this is, I'm solving part C just by the way, okay. So that's gonna make it minus 4A minus B, so that's Q to P and then P to T, ठीक है. PT याद है मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि पहले से निकाल लो, काम आएगा, तो अब काम आ रहा है. So A plus 4B, सही. So अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. So that's gonna make it minus 3A plus 3B. Now let's write it nicely, 3b minus 3a, and then let's take 3 common, so that's b minus a. अच्छा, वैसे jokes apart, ये जो मैं कहता हूँ ना आपको, let's just write this nicely and all that. The reason why I do this is because book ने भी एक standard method follow किया होता है, and you guys can see that it's pretty clear. वो ये कि the positive is always written first, and then you always take out common if there is something that can be taken out common. So पढ़ा के आप इस तरह लिखने के आदी हो जाते हैं. There's nothing else. So that's part C. That's part. What have I done? Oh, I've done part B. मैंने खाम part C लिखा. ठीक है. Is it possible? What is possible? What do you mean? Is what possible? RQ. अच्छा, what you're saying? RQ plus QT. RQ plus QT. That's gonna give us RT, and RT तो हमें चाहिए भी नहीं है. Or if you're thinking to make up an equation कि मैं RQ plus QT equals to RT लिखूँ and then plug in the values and solve for QT by making it the subject, then ठीक है, आप सही कह रहे हैं उस point of view से. So that's part B taken care of. Now let's do part C. अच्छा, part C करने के लिए part C क्या कह रहे हैं? Part C कह रहे हैं express QS as simply as possible in terms of A and B. Now can you guys quickly suggest how do I QS को मैं कैसे express करूँ? जल्दी से बताओ. Yes, Aksa, in that case you're absolutely right. QP plus PS, yeah, that's a brilliant idea. QP plus PS, yes, you guys are all right. QP plus PS, very good. Okay, so how do I get from Q to P? So I'm just gonna do it here, ठीक है. मैं इसी के ऊपर ही कर रहा हूँ because a lot of back and forth is gonna make it. 8 new coronavirus cases confirmed in Karachi. अबे भाई तुमने क्या कोई काउंटर चलाया हुआ है? खैर. So Q to P is going to be minus 4A minus B, and then P to S is going to be plus 5B, ठीक है. So this can be written as 4B minus 4A. Now let's take 4 common, so that's going to make it B minus A, ठीक है. सबको समझ आ रही है what I just did? ये इस खबर की सोर्स क्या है? हायर बिहार Facebook. Please don't say Facebook. For B minus A. Yep, good job. I like how you wrote it, the way it looks nicer. Geo News. Okay. Twitter Worldometer. अच्छा, अभी ज़रा मैं फारिग हो जाऊँ उस क्लास से, फिर देखते हैं क्या सीन है. अच्छा, so that's taken care of, ठीक है. So we figured out QT, we figured out QS. Now D part 1. अच्छा, I'm just going to write this separately, QT and QS, ठीक है. So QT हमने निकाला था 3 times of B minus A, ठीक है. QS हमने निकाला था 4 times of B minus A, ठीक है. ऐसे ही था ना? So now the question says D part 1 में what you're supposed to do is you're supposed to write down QT over QS, ठीक है. So once I do that, notice what happens. 3 times of B minus A over 4 times of B minus A. Now what happens next is कि B minus A get cancelled out and you're simply left with 3 over 4, ठीक है.
अच्छा, इससे इससे आपने क्या सीखा, मुझे ज़रा ये बताएं। द फैक्ट के वेज ब्रीहा, ब्रीहा के मतलब की चीज़ आ गई है। इससे बेसिकली हमने ये सीखा कि क्यू टी और क्यू एस, इनके जो वेक्टर्स कैंसिल हो रहे हैं, जो बी माइनस से और बी माइनस से कैंसिल हो रहा है, इसकी इसकी वजह क्या है? क्या इसकी वजह ये पैरेलल है या इसकी वजह कोलिनियर है? कोलिनियर, ठीक है, यूर एब्सोल्युटली राइट, इसकी वजह कोलिनियर है, ठीक है। अच्छा, रीजन बीइंग इट्स प्रीटी सिंपल, बिकॉज दे हैव अ कॉमन पॉइंट, ठीक है। व्हाट इज द कॉमन पॉइंट? द कॉमन पॉइंट इज क्यू। एक जा रहा है क्यू से टी, एक जा रहा है क्यू से एस, एंड इफ यू लुक एट द फिगर अगेन, और इसको भी अगर हम थोड़ा तमीज़ से बना लें, तो दिस इज गोना लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। हम इसको अपनी बेस कंसिडर कर लेते हैं। यस खतीजा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। ओ कहाँ गई? इसको ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, इसको ऐसे, और इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही कोई शेप है ना, ठीक है। अब तमीज़ से बनाने का फ़ायदा ये होगा, सर बिहा नाम पे तुक्का लगा है, सिर्फ बिहा के नाम पे तुक्का लगा है, अच्छा खैर। So the idea here is, now let me see the dimensions, Q, T, S and P, ठीक है। So here's Q, here's T, here's S and here's P, ठीक है। अब I want you guys to understand this, ठीक है, it's very important. Basically Q to T is 3 yes Ramin, I miss you all too. And Q to S is 4, ठीक है। Now one other thing that you guys can figure out with the help of this is the fact that TS is going to be 1, ठीक है। वो कैसे? कि अगर पूरी बेस के हम 4 हिस्से करें तो 3 हिस्से हमने दे दिए हैं QT को, ठीक है, अनुवाद फनी, ठीक है, और एक हमने दे दिया है TS को, सही। So again, what do you guys think these triangles are? Well, what do they share? They share the same height, ठीक है। Their bases are different, ठीक है, but they share the same height. Now, what does that mean? That means that if they share the same height, the ratio of the areas is going to be the ratio of their bases. ऐसे ही है ना? If they share the same height, the ratio of the areas is simply going to be the ratio of their bases, ठीक है. Now, let's go back to the question. Now the question says area of PQT over area of PQS. Alright, now what do you guys think? PQT and PQS, what do you think the ratio of their areas is going to be? This is part 2, by the way. PQT and PQS, quickly tell me. Nahi, they're not similar, goddammit, they're not similar, ठीक है. They are non-similar, non-congruent, ठीक है. मतलब अगर इनकी हाइट सेम है तो इनके रेशियो ऑफ जो एरियाज होंगे सिंपली द रेशियो ऑफ देयर बेसिस, ठीक है. आई होप दैट्स क्लियर. सर वीडियो बफर हो रही है. Okay, so what about the rest? Are we clear about this concept, this very critical concept? यही वो concept है जिसमें लोग struggle करते हैं, इसके अलावा और कोई concept नहीं है. Basically the question is asking us to find the area of, let me see, PQT and PQS, area of triangle PQT over area of triangle PQS. No, Anusha, you also fell for it. देखो बेटा, ये similar नहीं है, ठीक है. I repeat, they're not similar, ठीक है. Similar अगर होते हैं, ठीक है, तो या तो इनकी कुछ लेंथ्स पैरेलल होती हैं, ठीक है. They are non-similar, non-congruent, ठीक है. I repeat, they are ना तो ये similar है ना तो ये congruent है, ठीक है. इनमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि इनकी हाइट जो है वो सेम है, ठीक है. तो अगर मैं PQT का एरिया निकालने चलता हूँ, ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगा? 1/2 into 3 as what? As the base,
एंड इनटू व्हाट्स द हाइट, ना मुझे पता है ना आपको पता है, लेकिन पता होना ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। सो हम जस्ट गोना राइट इट एज हाइट, ठीक है। एंड अगर मैं निकालता हूँ पी क्यू एस का एरिया, पी क्यू एस का मतलब पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया जिसकी बेस क्या है, जिसकी बेस है 4, ठीक है। आई रिपीट, पी क्यू एस का मतलब इस पूरे ट्रायंगल का एरिया जिसकी बेस क्या है, जिसकी बेस है 4। सो हाफ इंटू 4 इंटू एच, सही। सो व्हाट्स गोना हैपन इज एच से एच कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या बचेगा, अल्टीमेटली हमारे पास बचेगा 3:4। नाउ व्हाई डिड वी नॉट स्क्वायर इट, वी डिडंट स्क्वायर इट बिकॉज दे weren't सिमिलर। हैड दे बिन सिमिलर तो हम क्या करते हैं, हम स्क्वायर करते हैं। देखो सिमिलर क्या होते हैं, हम जज कैसे करते हैं कि सिमिलर है। सिमिलर ट्रायंगल्स वो होते हैं जिनकी शेप जो होती है वो सेम होती है, ठीक है, और साइज जो होता है वो डिफरेंट होता है। दैट्स व्हाट सिमिलर ट्रायंगल्स आर। नाउ हियर ये जो ट्रायंगल्स हैं ये सिमिलर कहीं से भी नहीं है, इन द सेंस के ना इनकी बेसिस का रेशियो सेम है, ठीक है, ना इनके एंगल सेम है। सो देयरफॉर ना ये सिमिलर है ना ये कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा अनुषा, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, ठीक है, जस्ट पे अटेंशन, लेट मी जस्ट कॉपी दिस डाउन इन अ डिफरेंट पेज, लेट्स मूव दिस हियर, या दिस लुक्स गुड, ठीक है। आई रिपीट, पे अटेंशन। नाउ द आइडिया इज हमें चाहिए पी क्यू टी और पी क्यू एस के एरियाज का हमें रेशो बनाना है, ठीक है। सो आपने सबसे पहले तो इन ट्रायंगल्स को गौर से देखना है और ये फिगर आउट करना है कि ये सिमिलर कहीं से भी नहीं है। देखो अगर सिमिलर होते हैं ना तो पता है क्या होता है, सिमिलर वो होते हैं जिनके सारे एंगल सेम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चलो अच्छा हमारे सिमिलर ट्रायंगल्स भी थोड़ा बहुत रिवाइज हो जाएगा। लेट्स से यू हैव अ बिग ट्रायंगल हियर एंड इन इट यू हैव अ स्मॉल ट्रायंगल एंड यू नो, ठीक है, यू नो फॉर अ फैक्ट कि ये जो दो लाइन्स हैं ये पैरेलल हैं, ठीक है। अब ये जो आपके ट्रायंगल्स होंगे ना ए बी सी एंड ए पी क्यू, ये सिमिलर होंगे। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह सुनो। उसकी वजह यह है कि जो एंगल ए बी सी होगा वही एंगल ए पी क्यू होगा, ठीक है, एक एंगल सेम हो गया। और जो एंगल ए सी बी होगा वही आपका एंगल ए क्यू पी होगा। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है कॉरिस्पॉन्डिंग। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट एनीवेयर ताकि बाकी अगर किसी को कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। और एक ऐसा एंगल है जो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है और वो कौन सा है, वो है एंगल ए बी सी में भी वही है और ए पी क्यू में भी नहीं वही है, ठीक है। तो अगर आप इनका अगर आप सेपरेटली आप इनका मुलाहिजा फरमाएं, ठीक है, तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि बेसिकली एक ट्रायंगल ऐसा छोटा सा है, ठीक है, और एक आपके पास ऐसा बड़ा सा ट्रायंगल है। दैट्स व्हाट यू गोना ऑब्जर्व, ठीक है। एंड यू गोना ऑब्जर्व कि इनके जो एंगल्स हैं वो सारे क्या हैं, सब के सब सेम हैं, 1 2 3, 1 1 1 2 1 2। तो इफ़ यू हैव टू ट्रायंगल्स दैट हैव जिनके तीनों कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल सेम है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दे आर सिमिलर। अच्छा अब यहाँ पे ऐसी कोई स्टोरी नहीं है, यहाँ पे जो हमारे पास ट्रायंगल्स हैं दे आर नॉन सिमिलर एंड ऑब्वियसली नॉन कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट अगर होता है तो सब कुछ सेम होता, सही। अच्छा let me erase this, let's get this out of the way, you also। so what does that mean, that means कि अगर ये सिमिलर नहीं है ना ही कॉन्ग्रुएंट है और अगर इनकी हाइट सेम है तो ऑल आई नीड टू डू इज आई नीड टू फिगर आउट कि पी क्यू टी की बेस क्या है। सुना है मुझे याद किया जा रहा था, नहीं किसने कहा भाई, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। पी क्यू टी की बेस जो है वो 3 है, ठीक है, एंड पी क्यू एस की बेस क्या है, पी क्यू एस की बेस 4 है। सो 3:4 दैट्स गोना बी आवर फाइनल आंसर, ठीक है। सो दैट्स पार्ट 2 टेकन केयर ऑफ। नाउ अगर आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया तो क्या मैं पी क्यू टी और आर क्यू टी समझाने की गलती कर सकता हूँ? नहीं भाई गलत सुना है आपने। अच्छा सो अगेन हम ये इसको भी ज़रा तमीज़ से बनाना है। किसको तमीज़ से बनाना है? इसको, जो ये मैं ब्लैक से आउटलाइन करने लगा हूँ, ठीक है। इसको अगर हम तमीज़ से बना लें तो वील ऑब्जर्व कि हम आर टी पी को अपनी बेस ले लेते हैं, ठीक है। लेट्स टेक दिस लेंथ एज आवर बेस। ओके सो आर टी पी क्यू, ठीक है। समझ आया मैंने क्या किया? आई जस्ट ड्रॉन इट नाइसली ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ओहो 3G चला कर देख रही हैं, आई अप्रिशिएट इट। बस पढ़ाई के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। एनीवे अच्छा अब अगर आपको याद हो कुछ ही देर पहले हमने ये डिस्कवर किया था,
ठीक है, किया था ना डिस्कवर. लेट्स कॉपी दिस एंड लेट्स पेस्ट दिस हियर. ठीक है, इस डिस्कवरी से हमें क्या फ़ायदा हुआ था? इस डिस्कवरी से हमें ये फ़ायदा हुआ था कि हमें पता चल गया था कि भाई पी टी और पी आर का जो रेशियो है, कमेंट्स ना करने से 3G बचता है, ट्राई करो. ओह, अब नो कि अगर ये तंज था या जेन्युइन मशवरा. तो खैर, एज आई वाज सेइंग, सो पी टी इज़ 1 पार्ट एंड पी आर मीनिंग ऑल ऑफ दिस इज़ 3 पार्ट्स. ठीक है, सो टी आर इज़ गोना बी व्हाट? टी आर इज़ गोना बी 2 पार्ट्स. ठीक है, अच्छा, अब here's how this story goes. Again, ये दो ऐसे ट्राइंगल्स हैं जो कि ना तो सिमिलर हैं ना कॉन्ग्रुएंट हैं, लेकिन इनके दरमियान एक बड़ी अच्छी चीज़ है, वो ये कि दोनों की हाइट क्या है? दोनों की हाइट सेम है. ये हाइट सेम करने के लिए ना आपको ज़रा थोड़ा एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा और आपको इनको तमीज़ से बना के देखना पड़ेगा. ठीक है, अच्छा, अब ये तो मैंने सिर्फ ट्राइंगल्स बनाए, सही है ना. नाउ लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन आस्किंग फॉर. द क्वेश्चन आस्किंग फॉर पी क्यू टी ओवर आर क्यू टी. ठीक है, व्हाट्स द क्वेश्चन आस्किंग फॉर? द क्वेश्चन आस्किंग फॉर एरिया of triangle PQT over area of triangle RQT. ठीक है, now can anyone tell me what this is going to be equal to? ठीक है, this is I think the last question for today. Can anyone tell me कि किसके बराबर होगा? बस बेटा आखिरी सवाल कर रहा हूँ. One is to two. Absolutely, 1:2 is the correct answer. PQT basically here's what I'm doing. ठीक है, PQT का मतलब ये वाला ट्रायंगल. ठीक है, इसकी बेस क्या है? इसकी बेस है 1. और RQT का मतलब है, लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर. चलो ठीक है, लेट्स यूज ब्लू. RQT का मतलब है ये वाला ट्रायंगल. ठीक है, और इसकी बेस क्या है? इसकी बेस हम देख सकते हैं 2. अब सिंस दे शेयर द सेम हाइट, सो इट्स गोना बी इन द रेशियो 1:2. अब मुझे बताओ, सबको सब कुछ सही सही समझ आया? अनुषा 1 नहीं होगा, इट्स गोना बी 1:2. Right, I see a thumbs up, so I guess all is well. Another thumbs up, an angry reaction, couple of sad reactions, couple of ha-has. So I don't know. Fair. I guess all is well. So I'm gonna stop here. ठीक है, दिमाग बंद हो गया. हाँ वैसे सही कह रही हैं. आई नो 1.5 घंटा हो गया. कितना हो गया? नहीं चलो, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा. खैर, एनीवे, सो चलो I'll stop here. ठीक है, मेक श्योर that you guys go over the questions that I've already solved and make sure कि जो मैंने वो वीडियो आप लोगों से देखने से को कहा था वो भी आप देख लें. In case I didn't mention, I have a channel. It's called Mathlete, MATHLETE. ठीक है, make sure that you subscribe and share. ठीक है, don't forget that. Sir, can you please do the question I sent you? हाँ चलो ठीक है, I'll just reply that. मैं अभी सॉल्व करके आपको भेजता हूँ. ठीक है, and that's all for today. You guys take care. और next topic में चलो let's just have a vote कि next topic आप लोगों ने कौन सा पढ़ना है. ठीक है, I'm gonna share survey. ठीक है, उस पर आप लोग अपना वोट दे दीजिएगा कि आप लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है, या हम फेसबुक के किसी ग्रुप पे कोई पोल कर लेंगे. ठीक है, एंड देन वी कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली. सही, तो इसके पास्ट पेपर क्वेश्चंस आप लोग लाजमी कीजिएगा. ठीक है, हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनका डिफ़िकल्टी लेवल पास्ट पेपर से कई गुना ज़्यादा है. ठीक है, पास्ट पेपर्स में यू विल फाइंड रिलेटिवली ईजियर क्वेश्चंस. एंड ये जो PDF फाइल है ट्रांसफॉर्मेशन, ओके चलो एज आई सेड विल हैव अ वोट. ठीक है, ये जो फाइल है इसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मेरा टारगेट था आज कराने का, बट चलो खैर कोई बात नहीं. स्पेशली दीज टू क्वेश्चन 16 एंड 17. नाउ if you guys wish to like cement the concepts that we have already learned, ठीक है, so make sure that you guys do these questions 16 to 17. ठीक है, और आइडियली ये टॉपिक हमारा कंप्लीट जब ही होगा जब हम इसके कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, सो आई थिंक वैसे अभी मेरे जहन में ख्याल आया, मेरी रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट करें. अब हम अच्छा कर लेते हैं.
सो बेसिकली व्हाट आई थिंक इज़ कि हमें शायद वेक्टर्स की एक और क्लास रखनी चाहिए जिसमें हम करें पास्ट पेपर क्वेश्चंस. व्हाट डू यू गाइस सजेस्ट? एक और क्लास रख लें वेक्टर्स की जिसमें हम पास्ट पेपर क्वेश्चंस कर लें, एंड देन वी स्टार्ट अ न्यू टॉपिक. सर्कल प्रॉपर्टीज़, अरे भाई सर्कल प्रॉपर्टीज़ मैंने पूरा पढ़ाया है अक्सा. सर्कल प्रॉपर्टीज़ मैंने पूरा पढ़ाया है. वी हैव डन इट इन क्वाइट अ लॉट ऑफ डेप्थ. ठीक है, I'd suggest कि आप जो है मेरी प्रोफाइल पे जाके ज़रा सर्च करें, और इफ़ एनी वन ऑफ यू कैन सेंड इट टू हर दैट वुड बी ग्रेट. ठीक है, सो वो देखो, अच्छा खासा आपको समझ आ जाएगा उसमें. एंड आई थिंक देयर इज़ नो पॉइंट इन डूइंग समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डन अगेन. सो वी गोना डू वन मोर. ठीक है, दैट ये डिसाइड हो गया. वी गोना डू वन मोर क्लास ऑफ पास्ट पेपर्स एंड देन वी गोना स्टार्ट न्यू टॉपिक इंशाल्लाह, फॉर विच यू गाइज हैव टू वोट. ठीक है, सो अगेन आई एम गोना स्टॉप हियर. ठीक है, यू गाइज टेक केयर, एंजॉय, एंड अल्लाह हाफिज़.